Welcome back everyone. Now in this video we will start our next topic of chapter 9. ठीक है, that is separation of solids from liquids, that how we can separate solids from the liquids. So first method is sedimentation and descentation. So what is there in sedimentation? If we have a mixture of any insoluble substance, means it cannot soluble in the water, like sand in water. Sand is never soluble in water, it is insoluble. So how we can separate them, हम उनको separate कैसे कर सकते हैं? So there is a method that is sedimentation and descentation. So in this method what we will do, we will keep the mixture aside. हम mixture को एक side पे रख देंगे. Okay, then what will happen? After some time the sand will collect at the bottom of the water. So this process is known as sedimentation, कि हमने वाटर से सैंड को अलग कर दिया, that it has been collected at the bottom. Now what we will do, now how we will separate it? Now we will tilt this गिलास, हम इस गिलास को टेढ़ा करके we will pour the water, जो ऊपर ऊपर water है as you can see in this picture, we will pour that water into the and we will pour that water into the another glass. Okay, so this is how we can separate the water and sand will remain in this previous glass and the water will come into the new glass. So this is how, and this process of pouring the water ठीक है into the another container, this is known as descentation. Okay everyone, now the next is like this descentation and sedimentation कहते हैं we these processes or these methods we are also using in our homes. कहते हैं ये हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं ठीक है, on daily basis. So where we use them, हम इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं? So we usually use them while cleaning our pulses and rice. तो उनको हम क्या करते हैं, when we pour the water into rice or pulses, ठीक है, before cooking them हम उनको wash करते हैं ना. सो वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती हैं. एंड देन वी पोर द वाटर एंड देन वी थ्रो द वाटर, ठीक है, बाय टिल्टिंग द वेसल एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन इन आर किचन्स. ओके, एंड थर्ड वन इज़ कहते हैं दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ इन द वाटर प्योरीफिकेशन. ठीक है, व्हेन वी प्योर द वाटर, जब हम वाटर को प्योर करते हैं, गवर्नमेंट प्योर करती है वाटर को इन द वाटर प्लांट्स, then they are also using these methods sedimentation and descentation to remove the various kinds of impurities by keeping the water aside for some time. Then what happens, the heavy particles they settle down and then the government take the water from the above. So this is how they are using these methods. Clear? Now the next method is loading. So in loading what is there? So in कहते हैं sometimes there are substances, कहते हैं कुछ substances ऐसे होते हैं that they doesn't settle, वो settle नहीं होते at the bottom of the गिलास. ठीक है, वो गिलास के bottom पे settle कभी भी नहीं होते. So they keep on floating, वो float करते रहते हैं like clay particles. Then how we can separate them? तो हम उनको separate कैसे कर सकते हैं? So that there is one method that is loading. तो in loading में क्या होता है, how we can separate that kind of substances? We add another substance, हम उसके अंदर एक और सब्सटेंस ऐड करते हैं उस मिक्सचर के अंदर. लाइक एग्जांपल अलम होता है फड़कड़ी. सो जब इफ़ आई हैव अ सपोज आई हैव अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्ले, लाइक दिस इज़ माई गिलास, इसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है एंड क्ले पार्टिकल्स आर देयर. सो क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर लाइटर इन वेट, हल्के होने के कारण दे कीप ऑन फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर. देन हाउ वी कैन सेपरेट देम, बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से हम एक और सब्सटेंस इसके अंदर ऐड करते हैं, दैट इज़ नोन एज अलम. ठीक है, अलम होता है फड़कड़ी. सो बाय एडिंग दिस अलम व्हाट हैपन्स, क्या होता है ऐसा, so this alum coagulates all the impurities, all the clay particles together. वो क्या करती है, अलम सारे क्ले पार्टिकल्स को, ठीक है, इकट्ठा कर देती है. व्हेन ऑल द क्ले पार्टिकल्स कोआगुलेट टुगेदर देन दे बिकम हैवियर, तो वो हैवी हो जाते हैं. सो बीइंग हैवियर देन दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर, उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द वाटर. देन बाय डिसेंटेशन वी कैन ईजिली सेपरेट द क्ले पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. सो दिस इज़ हाउ
this is how we can separate these kinds of substances from the water by loading method. Clear everyone? Now the next one is सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? द लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन द ऑनलाइन क्लासेज ना, if you will mix any kind of oil into the water like mustard oil, kerosene oil, coconut oil, any kind of oil, in any vegetable oil, if you will put inside the water, then it will never mix with the water. वो कभी भी mix नहीं होता. It will form a different layer at the top of the water. Okay, then how we can separate that? That also we can separate with the help of descentation method. क्योंकि जो हमारे पास ऑयल होता है, ऑयल हमेशा एक अलग लेयर बना लेता है एट द टॉप ऑफ द वाटर. सपोज ये वाटर है हमारे नीचे, ठीक है, ऑयल ने एक डिफरेंट लेयर बना ली. देन हाउ वी कैन सेपरेट दैट? बाय टिल्टिंग इट. हम इसको टेढ़ा कर देंगे, ऊपर से ऑयल की लेयर हम सेपरेट कर लेंगे एंड देन द वाटर विल बी separated from the oil. Okay everyone, now the next method is filtration. So what is a third method? This is the third method to separate the liquids from solids from the liquids. So by filtration method we can separate them. Okay, so filtration, this is very easy. We usually use this method at our homes. हम अपने homes में भी use करते हैं इसको. So while making the tea, जब हमारी चाय बन जाती है तो हम क्या करते हैं? वी यूजिंग दिस फिल्ट्रेशन मैथड, वी यू कैन से वी रिमूव द टी लीव्स फ्रॉम द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. हम इस स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, इस छननी का यूज़ करते हैं, है ना. क्यों यूज़ करते हैं? टू रिमूव द टी लीव्स. टी लीव्स होता है चाय पत्ती, चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द टी. टी हमारी लिक्विड हो गई, है ना, और चाय पत्ती क्या होगी? हमारी सॉलिड हो गई. तो हमने सॉलिड को अलग कर दिया ना फ्रॉम द लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेनर, एंड दिस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन, कि हमने फिल्टर कर दिया चाय को. ठीक है, हमने रिमूव कर दिया टी लीव्स को फ्रॉम द टी. ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट इज, कहते जो फिल्ट्रेशन मेथड है, दिस इज़ ऑल्सो यूज इन आर एक्वागार्ड्स. जो हमारे घर में फिल्टर्स लगे होते हैं, एक्वागार्ड्स लगे होते हैं, सो दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ, दे ऑल्सो यूज दिस मैथड, फिल्ट्रेशन मैथड. सो व्हाट इज़ देयर इन दिस मैथड? दोज एक्वागार्ड्स फिल्टर द इम्प्योरिटीज़. ठीक है, उनके अंदर एक नेट सी लगी होती है, जो जिसको आप कैंडल बोलते हो. कैंडल आप चेंज करवाते हो ना आफ्टर एवरी 3-4 मंथ्स और 5 मंथ्स और 6 मंथ्स, है ना. वाई देयर इज़ नीड टू चेंज दैट कैंडल? वो अलग से बाहर एक कैंडल नहीं लगी होती. सो दैट कैंडल एक्ट एज अ फिल्टर, वो फिल्टर का काम करती है. बिकॉज द इम्प्योरिटीज़, ठीक है, दैट कैंडल फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ एंड देन द प्योर वाटर कम्स टू योर एक्वागार्ड एंड देन यू आर एबल टू ड्रिंक दैट वाटर. ठीक है, तो जब वो कैंडल आपकी इम्प्योरिटीज़ के साथ फुल हो जाती है, देन देयर इज़ अ नीड टू चेंज दैट. तो कहते हैं ऐसे आप फिल्ट्रेशन मैथड. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द फिल्ट्रेशन मैथड इन आर होम्स वाइल मेकिंग द टी एंड इन आर एक्वागार्ड्स ऑल्सो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़, व्हाट इज़ देयर? Yes, now next one is evaporation and condensation. ठीक है, now this is different methods that how we can if I have a soluble mixture. Soluble means like I have a mixture of salt and water. अगर मेरे पास salt and water का mixture है, suppose I have a mixture of salt and water, ठीक है, then how I can separate that mixture? ठीक है, सो आई कैन नॉट सेपरेट दैट बाई सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, क्योंकि सॉल्ट कौन सा मतलब नीचे सेटल डाउन होता है एट द बॉटम ऑफ द वाटर, है ना. बिकॉज इट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, वो तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में. देन हाउ वी कैन सेपरेट दैट मिक्सचर? सो द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन में क्या होता है? वी विल हीट द मिक्सचर. हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हीट कर देंगे. देन व्हाट विल हैपन? द वाटर विल इवेपोरेट्स. वाटर हमारा उड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड व्हाट विल लेफ्ट बिहाइंड? पीछे क्या रह जाएगा? सॉल्ट. द सॉल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड इन आर वेसल.
तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट मिक्सचर. क्लियर एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन. सो व्हाट इज देयर इन कंडेंसेशन. कहते जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, द वाटर दैट इज इवेपोरेटिंग, उसको हम कलेक्ट भी कर सकते हैं. वी कैन कलेक्ट दैट वाटर ऑल्सो. हाउ वी कैन कलेक्ट? बाय कीपिंग द cold surface over the water vapors. If like as you can see in this picture, they have kept the plate on the water vapors. These are the water vapors है ना. These are the water vapors. ये क्या है? Water vapors है. तो they have kept the plate over the water vapors. Now when these water vapors will touch the cold surface of the plate, then they will convert into water droplets. वो किस में convert हो जाएंगे? Water droplets में. And then we are able to collect these water droplets into this beaker, and this process is known as condensation. When water vapors get converted into water droplets after coming into the cold surface, ठीक है, that process is known as condensation. Clear everyone. Now next is, this is the activity. This is the activity that how we can separate the salt and water mixture. That is for that we have to take the mixture inside a bowl or china dish में हम mixture को लेंगे. Then we will heat the mixture. After some time the water will evaporate in the form of water vapors, and what will left behind, पीछे क्या रह जाएगा china dish में? Only salt. So this is how we can separate the mixture. Okay. Now our last topic is solubility. Now our last topic is solubility. So in solubility, first of all we will discuss about solution. Solution क्या होता है? A mixture of any two substances, ठीक है, or more than two substances. Like when if we are having a mixture of salt and water, ठीक है, so उसको हम क्या बोलेंगे? That is known as solution. तो उसको हम बोलेंगे solution. Okay. And जो कहते हैं solution है, solution has two parts. solution के two parts होते हैं. one is solute and the other one is solvent. Okay. So example, if I am having a solution of water and salt, अगर मेरे पास solution है water and salt का, so ये देखो ये दो चीज़ों का ही बना हुआ है ना. इट हैज़ टू पार्ट्स. वन इज़ वाटर एंड द सेकेंड वन इज़ सॉल्ट. अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो द सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड, वो सब्सटेंस जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं दूसरे के अंदर, दैट इज़ नोन एज सल्यूट. उसको हम क्या बोलते हैं? सल्यूट. एंड इन विच डिज़ोल्व, जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट. तो इसमें क्या है? हम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो सॉल्ट को हम सल्यूट बोलेंगे, और किसके अंदर कर रहे हैं? वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट. दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट. So solution has two parts. One is solute and the second one is solvent. Clear everyone? Okay. Now the next one is saturated and unsaturated solutions. So unsaturated और saturated solutions कौन से होते हैं? If we keep on adding, अगर हम मान लो if I am having a mixture, अगर मेरे पास एक mixture है suppose salt and water का, ठीक है, this is a mixture of salt and water. ओके. इफ़ आई एम कीप ऑन एडिंग द सॉल्ट इन द वाटर, अगर मैं ऐड करती जाऊंगी इस मिक्सचर के अंदर सॉल्ट को, ठीक है, मैंने 1 स्पून किया, 2 स्पून करे, 3 स्पून करे, तो सपोज दीज 3 स्पून्स हैव बीन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ये डिज़ोल्व हो गए वाटर में. बट एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन योर सॉल्ट स्टॉप्स डिज़ोल्विंग इनसाइड द वाटर, जब आपका सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा पानी के अंदर. ओके. वाई इट इज़ सो? बिकॉज जो स्पेसिस होती हैं पानी के अंदर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द ऑनलाइन क्लासेस, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव स्पेसिस इनसाइड दैम, ठीक है, दोज विल बी फिल्ड बाय द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स. जब वो स्पेसिस सारी फिल्ड हो जाएंगी, देन योर सॉल्ट स्टॉप्स डिज़ोल्विंग, तो आपका सॉल्ट और ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है. सो द स्टेज, द पॉइंट where your salt will stop dissolving in the water, so that solution we will call it a saturated solution. उसको हम क्या बोलेंगे? Saturated solution.
कि अब आपका जो सल्यूट था वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया इनसाइड द वाटर, ओके, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हमने ऑलरेडी डिसॉल्व कर दिया. नाउ मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट वी कैन नॉट डिसॉल्व, देन वी कॉल दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन. बट इफ़ आर सॉल्ट इज स्टिल डिज़ोल्विंग इन द वाटर, अगर हमारा सॉल्ट अभी डिज़ोल्व हो रहा है, then we call that solution unsaturated solution. Means our water has capacity to dissolve the salt in it. हमारे वाटर के अंदर अभी भी कैपेसिटी है सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की, अभी भी स्पेसिस प्रेजेंट हैं. then we call that solution as a unsaturated solution. Clear everyone? I hope everyone clear with the topic. Now the next one is, next topic, water dissolves different amount of different solutes. What does it mean? इसका मतलब है कि वाटर के अंदर ज़रूरी, इफ़ वी आर हैविंग डिफरेंट सल्यूट्स, अगर मेरे पास 3 तरह के सल्यूट्स हैं, लाइक आई एम हैविंग सॉल्ट, आई एम हैविंग शुगर एंड आई एम हैविंग लेमन जूस, तो ज़रूरी नहीं है ये तीनों अलग अलग तरह के सल्यूट्स सेम क्वांटिटी में ही डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर. ठीक है, इफ़ आई एम हैविंग 1 गिलास ऑफ वाटर, मेरे पास यहाँ पे वाटर है इस गिलास में, अगर मान लो इसके अंदर सॉल्ट 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि शुगर भी 2 स्पून ही डिज़ोल्व होगी या फिर लेमन जूस भी 2 स्पून ही डिज़ोल्व होगा. दैट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, हो सकता है शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए. ठीक है, शुगर कैन डिज़ोल्व 5 स्पून ऑफ शुगर कैन डिज़ोल्व इन 1 गिलास ऑफ वाटर, है ना, और 10 स्पून ऑफ लेमन जूस कैन बी डिज़ोल्व इन 1 गिलास ऑफ वाटर. तो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सल्यूट्स ही डिज़ोल्व हों. ठीक है, देयर द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट्स कैन बी डिफरेंट इन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर. Clear everyone? So I hope you are everyone is clear with the chapter. So with this we have finished our chapter. I hope everyone is clear and most of you have already attended the classes and our chapter is already clear in the online classes. Still, if there is any problem, then you can call anytime to me on my number. My number is already with you. Now please read this topic at home and complete your work on time and keep sharing your work on regular basis with me. Okay everyone, so we will meet in next video. Till the time, bye bye everyone.